Bro. So what more? Now what do you want me to I trend have so for? many things to tell you. First of all, it's a beautiful trailer. Sam, you've got a lot of. हिंदी में कुछ बात कर सकते हैं? हाँ, हिंदी में. ट्राई करेंगे ना? क्या बात है, क्या बात है? हिंदी. मैं already समझता को प्रिपेयर करे. तुम सब कुछ हिंदी में आंसर देना. बराबर बराबर एकदम. Already भट्टी करके already बोल दिया मैंने. कुछ नया नहीं है, I cannot. Okay, so I'll ask you the question in Hindi. Yes. Nationwide audience से, international audience से, because of your performance in The Family Man. Thank God you didn't say one हिंदी में hour. हिंदी में. नहीं, One Tava also, but Family Man 2. यहाँ पे ये फर्स्ट मूवी है जहाँ पे थिएटर में रिलीज हो रही है, जो आपकी पैन इंडिया रिलीज है, एंड इट इज यू आर प्लेइंग द सेंट्रल कैरेक्टर. जब भी हमने ऐसे स्केल पे कोई भी मूवी देखी है, इट हैज ऑलवेज बीन अबाउट मेन एंड वॉरफेयर. This is the first time it's gonna be about a woman, a woman's dignity, and a woman's beauty, inner beauty as well, and spiritualism. It's special in a lot of ways because, like Sir said, Gunashekhar फिर sir. पूरा इंग्लिश आ गया. हाँ हिंदी हिंदी में पूछे. हिंदी. मैं तो बंगाली हूँ ना, मैं भी हिंदी में. मैं रेडी हूँ अभी. गुणशेखर सर ने जैसे कहा कि 50 साल पहले ऐसी लास्ट मूवी बनी थी इस टॉपिक पे, तो फॉर 50 इयर्स हमने ऐसी मूवी देखी नहीं. तो व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन द मूवी फर्स्ट केम टू यू? क्योंकि ऐसी मूवीज नहीं बनती यूजुअली. Exactly. Also, Gunashekhar sir, I think, is a feminist. He writes only female-oriented films somehow. He's not scared of a risk. He's not, and he wants to tell great stories. And those stories just happen to revolve around women. सेम क्वेश्चन प्रोड्यूसर दोनों के साथ, दिल राजू गारू एंड नीलिमा गारू, कि हमने प्रोड्यूसर्स को भी ज़्यादा नहीं देखा है जहाँ पे पॉपुलर सुपरस्टार हीरो ना हो, तो ऐसे इतने स्केल पे, इतने लैविश स्केल पे किसी भी चीज़ को बैकअप देने में. तो क्या प्रॉम्प्ट किया आपको कि आपने ये मूवी को प्रोड्यूस किया? ये हिंदी में बोला. गुड. मेरे लिए तो पूरा हिंदी में बात करिए, उसके लिए थैंक यू. या अभी पिक्चर में जो कहानी स्टोरी रहते, वो स्टोरी प्रॉपर है तो ऑडियंस लाइक करते. आप अभी तक मैं 50 फिल्म करे 20 साल में, उसमें जब पहले मैं स्टार्ट किया पूरा स्टोरी बेस्ड फिल्म, अपकमिंग स्टार्स, न्यू डायरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करके मेरा पहले 10 फिल्म वैसे रहते. सो वही कॉन्फिडेंस है. अभी गुणशेखर जी ने बताया तो ये कहानी बेसिकली जो अपना इंडियन कल्चर है, महाभारत से जो आया, ये जनरेशन को अभी देख रहे हैं. माइक चेंज करो सर. माइक चेंज, बैकग्राउंड भी चेंज करो. ये जनरेशन जो अभी पूरा सब लोग अपना बहुत कुछ भूल जा रहा है. ये जनरेशन जो अभी नया जनरेशन है, उसको अपना हिस्ट्री वो पूछे थे, कौन है शकुंतला, कौन है दुष्यंत, कौन है, किसको भी नहीं मालूम. ये प्रॉपर स्टोरी है. इसको अब ये जनरेशन में अपना हिंदुस्तान में ये पिक्चर को रीच करने के लिए मैं प्रोड्यूस किया. So, like Sir said, actually the content is the king. The content is the hero of the film. I think even Samantha would agree to that. So, not just thinking of it as women-centric, but the story is the hero, especially for this scale. ऑडियो खराब है. Shahar from News 18. हिंदी. एक बार माइक चेक कर रहे हैं. हिंदी. Mr. Samantha ma'am, hi. First of all, you're looking fab. I was just telling my friend that I love what you're wearing today. I wanted to know that apart from the beautiful trailer that we saw, we also couldn't take our eyes off Anu Arhan. She looks so pretty and she looks so cute in it. So I wanted to know, by any chance, did you get a chance to talk to Allu Arjun sir about her performance, and did he talk to you or come and ask you anything about it? I think for some reason that she is her own person and she decides things. I don't think her father involves and is going to involve himself in her career because it's going to kind of take off differently after this movie. I think it's something to look forward to. Definitely, when I say that families and children are going to connect to this film, apart from the main leads,
you know, there's a child who has a beautiful role in this film. So I think there's going to be a massive connect there. गुना शंकर जी, मेरा सवाल आपसे है। एक तो सबसे पहली बात कि इन्होंने जैसा कहा कि आप फेमिनिस्ट हैं और आपने इसके पहले भी बहुत अच्छी स्टोरी हमें दी है, लेकिन मैं एक छोटा सा आपसे सवाल करना चाहती हूँ। एक तो ये बहुत ही मेस्मराइजिंग था जो अभी हमने ट्रेलर देखा, उसके जो स्पेशल इफेक्ट्स हैं, उसका डायरेक्शन है, इवन स्क्रीन प्ले भी जो हमें दिखाई दिया वो बहुत ही खूबसूरत था। तो उसके लिए तो मैं पहले आपको बधाई देना चाहती हूँ। लेकिन दूसरी तरफ मैं एक सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगी। जो शकुंतला है वो हमारे बहुत गर्व का विषय है। शकुंतला जो अपने बच्चे को, उसने सिंगल पेरेंट होकर अपने बच्चे को शिक्षा दी, वो जो जंगल में रहकर बहुत बड़ी ये रही हैं, गुरु रही हैं, साथ में बहुत नॉलेजेबल थी। उनको भाषा का प्रकांड पंडित कहा जाता है। तो जो इस फिल्म में जो भाषा का जो प्रयोग है वो आपके साउथ के लैंग्वेजेस में ज़रूर अच्छा होगा, लेकिन हिंदी में वो थोड़ा कहीं कमतर नज़र आता है। जैसे ये जो आपका सॉन्ग है उसी में अग्निवर्षम में ना थोड़ा है, जो ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना मनोज मुंतशिर ने बाहुबली के लिए ट्रांसलेट किया था या KGF का ट्रांसलेशन था। तो क्या आप मानते हैं कि उस चीज़ को थोड़ा सा और अच्छा किया जा सकता था लैंग्वेज के लिए, नॉट आपका स्क्रिप्ट या स्क्रीन प्ले नहीं? On behalf of myself, he speaks in better Hindi. या डेफिनेटली आप जो बताया, ये फिल्म बेसिकली प्रॉपर तेलुगु में बने। सो तेलुगु में बने जब पूरा तेलुगु के डायलॉग्स वो हिसाब से तेलुगु स्क्रिप्ट लिख के पूरा प्रॉपर तेलुगु फिल्म है। तेलुगु के बाद जब डबिंग में आता है, आपका जो बात बोल रहे हैं हम लोग मानने के लिए प्रॉपर जैसा तेलुगु में आता वो ट्रांसलेट करे जब 100% सेट नहीं होते, बिकॉज लिप सिंक भी मैच करना। सो राइटर को क्या होता है, जब लिप सिंक के लिए वो इजी के लिए ट्राई करे, तो ऐसा आप जो पूछ रहे वो गए सो है, वो आगे ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम लोग ट्राई करेंगे। सॉरी फॉर दैट, मुझे लगा है फिल्म। नो 100% एक्सेप्ट करते हम। अब मैं तो ऐसा 50 फिल्म बनाए इतने करता हूँ, एक्सेप्ट करना जो भी ऐसा क्वेश्चन आता है उसको एक्सेप्ट करें तो आगे ऐसा हम लोग बेस्ट करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम आरती सक्सेना है। मेरा ये सवाल नीता लल्ला जी से है। आपने बहुत सारी फिल्मों में बहुत अच्छी ड्रेस डिज़ाइनिंग की है और ये काफ़ी डिफरेंट था, तो इसके लिए जब आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग का ऑफ़र मिला तो मतलब आपने क्या खास करने की सोची और कितना आपने इसके ऊपर रिसर्च किया? नमस्कार मैम, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। ये एक ऐसी स्टोरी है जिस पे हम सब बड़े हुए हैं और अमर चित्र कथा जो आजकल बच्चों को शायद मालूम भी ना हो, तो हमने उसमें पता नहीं कितनी बार पढ़ी होगी, अपने बिस्तरे के नीचे रख दी होगी क्योंकि मम्मी गुस्सा करेगी। चंदा मामा में पढ़ी है और बस यही एक ज़रिया रहता था हमारी स्टोरीज़ सुनने का और देखने का। और उसके अलावा अभी जब ये मीडियम बड़ा हुआ है, जैसे डिजिटल मीडियम है या सिनेमा है, तो इसमें अब हम इसको बड़े पर्दे पे देख सकते हैं। तो ये स्टोरी के उपरांत जब आप देखते हो उस वक्त में हमें बड़ी बड़ी पेंटिंग्स देखने को नज़र आते थे जो आप नहीं देखने को नज़र आते हैं। और जब जैसे आप शकुंतला बोलो, किसी को भी शकुंतला बोलो या नाम पूछो तो कहते हैं कि विजन इन वाइट। तो जब सर ने मुझे ये स्टोरी और ये पिक्चर ऑफ़र की तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि आज तक इस स्क्रिप्ट पे किसी ने पिक्चर नहीं बनाई है। और इसमें जो एक माध्यम, एक ज़रिया है बच्चों तक पहुंचने का और उनको दिखाने का कि उस वक्त के ज़माने की क्या ब्यूटी थी,
तो उसको कैप्चर करने के लिए कुछ जो पहले की विजन्स थी, मैगज़ीन्स थी, बुक्स थी, उसको लेकर फिर अपना थोड़ा सा उसमें ऐड करके एक मिलेनियल से जुड़ने का ये बहुत ही अच्छा माध्यम रहा है. और आई थिंक द इंस्पिरेशन हैज़ बीन द स्टोरी, द इंस्पिरेशन हैज़ बीन द ब्यूटिफुल actors who've been there in the movie, and to be able to create and bring to life for the younger generation कि ये था हमारे पुराने ज़माने की जो स्टोरी है, that is what excited me. Hello, yeah, Center here, Mayur here from Beyond Bollywood. मेरा सवाल प्रोड्यूसर साहब से है और सुमंदा अगर आप चाह even you can add to it. आपने ऑब्वियसली जिक्र किया कि इस पीढ़ी के लोगों को बताना है जिन्हें शायद पता नहीं होगा हमारा इतिहास, और जैसा मैंने कुछ सालों में देखा है कुछ फिल्में आई है, आई थिंक ऐसी स्टोरीज़ को खासकर मिथोलॉजी को उनके ट्रेडिशनल फॉर्मेट में कहना बड़ा चैलेंजिंग रहता है. और हमने देखा है थ्रू फिल्म्स लाइक कार्तिकेय, इवन सुनंदा योर फिल्म यशोदा, जो कि मुझे शायद एक मॉडर्न रीटेलिंग ऑफ कृष्ण कंसा स्टोरी मिथोलॉजी की लगी. तो बतौर प्रोड्यूसर सर, आप भी ऐसा सोचते हैं कि मतलब फॉर सम मिथोलॉजिकल सब्जेक्ट्स कि अगर आज की जनरेशन को बताना है तो शायद बेहतर ये होगा कि इट हैज़ टू बी अ मॉडर्न रीटेलिंग और एक कंटेम्प्रेरी सेटिंग में उस कहानी के इथॉस को बाहर लेके आए. तो इस चीज़ पे आप कुछ कहना चाहेंगे? या जरूर. जब अपन बच्चे लोग थे, जब सबको मालूम है रामायण आए थे टीवी में, सब लोग काम बंद करके टीवी के सामने बैठे, पूरा हिंदुस्तान. उसके बाद महाभारत भी देखे. मगर डे बाई डे अपना लाइफस्टाइल चेंज हो गया, मॉडर्न हो रहे, टेक्नोलॉजी आ गए. सो इसमें क्या है, ऐसा गुना जी जब कहानी मुझे बोला है, डेफिनेटली आई विल प्रोड्यूस, आई विल सपोर्ट यू, बिकॉज वी आर ट्राइंग दिस 100% इज अ VFX बैकड्रॉप. सो आज का जनरेशन के लिए उसको समथिंग मैजिक भी लगना. थिएटर में बैठे जब बोले ऐसा कहानी बोले तो वो देखने वाले नहीं है, मम्मी बाहर जाएंगे वैसा बोलता है बच्चे. उसके लिए पूरा एक स्टोरी में, फिल्म में एनिमल्स समंता बताया ना, जैसा डिस्नी फीलिंग, ये पूरा एडेड है. जो ओरिजिनल स्टोरी में है वो पूरा 3D में. आप लोग अभी 3D में ट्रेलर देखा है, आपको डेफिनेटली समथिंग मैजिक लग रहा है. फिल्म में भी वैसा मैजिक के साथ अपना कहानी अभी प्रेजेंट जनरेशन को रीच करने के लिए ट्राई करें. वो 100% अचीव करते. फैमिली ऑडियंस और किड्स विल एंजॉय द फिल्म. आप कुछ कहना चाहेंगे? I think